Okay, so good morning, students, and welcome to the second lecture on Fourier transformations. In the previous lecture, we have studied about the basic properties of the Fourier transform, Fourier cosine transform, and Fourier sine transformation, and solve some problems based on the definitions of the Fourier transform, Fourier cosine transform, and Fourier sine transformations. So, in this lecture, we shall study about the some basic properties of the Fourier transform, Fourier cosine transform, and Fourier sine transformations, and solve some problem based on these basic properties. So, let us start with the some properties of the transformations. So we shall define these properties without any proof, first of all. So the first property is linearity. If capital F omega and g omega are the Fourier transformation of the some function ft and gt, then the Fourier transformation of the linear combination of these two functions f and g with constant multiplications a and b is given by a times Fourier transformation of small f plus b times Fourier transformation of small g. इट मीन्स आपके पास में कोई दो फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दियर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट. And you can easily prove this by using the standard definition of the Fourier transformation. ये आप easily prove कर सकते हैं. Here a and b are the real constants basically. A, b belongs to the set of real numbers. Similarly, if fc omega and gc omega are the Fourier cosine transformation, as we know that this suffix denote the cosine transformation. So fc and gc omega are the Fourier cosine transformations of the functions ft and gt. Then the Fourier cosine transformation of the linear combination aft plus bgt is given by their linear combination of the Fourier transformations afc omega plus bgc omega, where a and b belongs to the set of real numbers. Similarly, if fs omega and gs omega are the Fourier sine transformations, right, of the functions ft and gt, then the Fourier sine transformation of the linear combination of these two functions, which is given by aft plus bgt equals to a times Fourier sine transformation of small f plus b times Fourier sine transformation of the small g, where a and b are the real numbers, right. So ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है which is known as the linear property or linearity. Now next property is time shifting property, right. इट मीन्स हमारे जो फंक्शंस है उसमें हमने टी को हमने जो टी नोट से रिप्लेस कर दिया टी माइनस टी नोट. सो सपोज दैट Fourier transformation of this small function is capital F omega and t naught is any real number, then the Fourier transformation of this f of t minus t naught is given by e raised power minus iota omega t naught capital F omega, right. You can easily prove this by using the standard definition. आपकी डेफिनेशन क्या है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की? आपकी डेफिनेशन है, इफ यू रिमेंबर, कैपिटल एफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई रेस पर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी. अब यदि इस फंक्शन में आप टी की जगह टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर देंगे इसको, बेसिकली दिस इज आवर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफ टी. ठीक है. अब यदि इसमें आप टी की जगह टी माइनस टी नोट रिप्लेस करेंगे, देन वी कैन इजीली फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस टी नोट विच इज गिवन बाय ई रेस पर माइनस आयोटा ओमेगा टी नोट कैपिटल एफ ओमेगा. यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, यदि आप टी की जगह टी माइनस टी नोट पुट कर देंगे, सो डी टी डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट में भी कोई चेंज नहीं होगा. चेंज कहाँ पे होगा? ओनली यहाँ पे हो जाएगा. दिस इज रिप्लेस बाय एफ ऑफ टी माइनस टी नोट
और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे? दिस थिंग विल बी रिप्लेस बाय ई रेस पावर माइनस ओमेगा टी माइनस टी नोट। टी नोट आपके पास में कोई कांस्टेंट नंबर है, सो यहाँ से हमको क्या कॉमन मिलेगा? ई रेस पावर आइटा ओमेगा टी नोट कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है, राइट। So this is our Fourier transformation known as this time shifting property. And you can easily verify that the ये जब भी आपके पास में कोई Fourier transformation एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई में है और आपसे कहा जाए फाइंड द इनवर्स Fourier transformation, देन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब भी आपके पास में Fourier ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई में है विद कांस्टेंट टाइम, ठीक है, तो उस केस में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम हियर एफ इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी नॉट कैपिटल एफ ओमेगा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट, राइट। इसका इनवर्स क्या बन जाएगा? एक्चुअल फंक्शन के बराबर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इफ कैपिटल एफ omega is the Fourier transformation of the small function ft and omega naught is any real number, then the Fourier transformation of e raised power iota omega naught t ft equals to f of omega minus omega naught, ठीक है। तो जब भी आपका कोई फंक्शन किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई में हो विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है, तो इस केस में आपका जो Fourier ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा दैट इज एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सो ये वाली प्रॉपर्टी आपको कब यूज करनी है? जब आपका एक्चुअल फंक्शन किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई में है और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। तो आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंड सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ दिस एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू एक्चुअल फंक्शन ई पर आयोटा ओमेगा नॉट टी एफ टी, ठीक है। तो ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपकी है। नेक्स्ट वन इज द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। इट मींस इफ यू रिमेंबर द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, सपोज यदि आपको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है, सपोज दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा, और यहां से यदि हम टी को किसी ए टी से रिप्लेस कर दें विद वेयर ए इज एनी रियल कांस्टेंट, then the Fourier transformation of this new function f of at is given by this relation 1 upon a times capital F omega upon a provided that the Fourier transformation of ft exists, ठीक है। यदि आपको ft का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप यू कैन इजीली फाइंड द Fourier transformation of f of at which is given by 1 upon a times capital F omega upon a. Similarly, you can find the Fourier cosine and Fourier sine transformation of the function f of at and Fourier cosine transformation of f of at is given by 1 upon a fc omega upon a provided that Fourier cosine transformation of ft exists. Similarly, the Fourier sine transformation of f of at is given by 1 upon a fs omega upon a provided that Fourier sine ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप इजीली इसकी प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो भी आपके पास में अवेलेबल है। लेट अस ट्राई दिस फर्स्ट वन। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, ठीक है। बाय द डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ ए टी ई रेस पावर माइनस ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे यदि आप इफ यू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन ए टी इक्वल टू सम अदर वेरिएबल यू देन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन ए डी यू। सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई माइनस प्लस इंफिनिटी
एफ ऑफ यू ई रेस पर माइनस आयोटा ओमेगा यू अपॉन ए डी यू अपॉन ए. So this is equals to 1 upon a constant कॉमन आ जाएगा आपके पास में, एंड दिस इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ यू. एफ ऑफ यू का मतलब टी अपॉन ए, यहां से यू का मतलब, ठीक है. कोई डाउट इसमें? आपको जो डेफिनेशन है वो यूज करनी है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है ना. हेलो. यस सर. Yes. ऑलराइट, सिंपल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यूज करनी है. ओके नाउ सर. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाली प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज यूजफुल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स. जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, देन वी यूज these properties. So these properties are very important. So let ft and f prime t be continuous and absolutely integrable over the interval minus infinity to plus infinity, and ft approaches to 0 as ft approaches to infinity. Then the Fourier transformation of the first derivative is given by iota omega capital F omega. ठीक है. सेम डेफिनेशन जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की है वो हम अप्लाई करेंगे, और इसका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, आयोटा ओमेगा कैपिटल एफ ओमेगा. सिमिलरली द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस रूट टू अपॉन पाई एफ जीरो. इसको आप इजीली देख सकते हैं. आपकी डेफिनेशन क्या है? रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इंफिनिटी एफ प्राइम टी एफ ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी. यही डेफिनेशन आपकी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. इसकी डेफिनेशन से ये आपकी बनेगा इंटीग्रल. यस और नो? बनेगा कि नहीं बनेगा ये? यदि आप यहाँ पे इसका फूरियर कोसाइन की डेफिनेशन लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर, तो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा? रूट टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ प्राइम टी कॉस ऑफ ओमेगा टी डी टी. यस और नो? Yes, sir. अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप चेक कीजिए एक बार. इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए आप, ठीक है. See, this is root 2 upon pi, right? ये आपका बनेगा फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन. इट मींस एफ टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, आपकी लिमिट्स हो जाएंगी टी इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन. तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा विद रेस्पेक्ट टू टी? कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओमेगा जीरो से इंफिनिटी. इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एफ टी, एंड दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी. ठीक है, राइट. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट योर फंक्शन इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. सो इंफिनिटी पे, और यहाँ पे कंडीशंस क्या है? एफ टी अप्रोचेस टू जीरो, एस टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी. तो इंफिनिटी पे अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू बन जाएगी जीरो, और लोअर लिमिट पे इसकी बन जाएगी वैल्यू एफ एट जीरो. सो इसको आप क्या लिख सकते हैं? और ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन वाली टर्म बन जाएगी. सो यू कैन राइट ओमेगा टाइम्स एफ एस ओमेगा
माइनस √2/पाई एट f0। ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस f(0) मल्टीप्लाई बाई √2/पाई। और ये हमारे पास में क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft है विद मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, राइट? So omega fs omega minus √2/pi f0. So you can easily verify that Fourier cosine transformation of first derivative is given by omega fs minus √2/pi f at 0. Similarly, you can verify that Fourier sine transformation of the first derivative f equals to minus omega fc omega. ठीक है, ये आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं by using the definition of the Fourier sine transformation. This one is the Fourier transformation of the nth derivative of the function, which is given by iota omega power n capital F omega. Similarly, you can find Fourier cosine transformation of the second derivative. Same process आपको follow करना है. If you simplify, then you get minus omega square fc omega minus √2/pi f prime at 0. And Fourier sine transformation of second derivative is equals to minus omega square fs omega plus √2/pi omega at f at 0. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. ये कहाँ नेटवर्क का इश्यू आ गया था बीच में, तो कहाँ से हम स्किप कर गए थे? ये वाली क्लियर है यहाँ पे या इससे नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था इससे पहले ही? Sir, slide visible नहीं है. अभी विजिबल नहीं है स्लाइड आपके लिए? No, sir. ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
अभी विजिबल है? Yes, sir. ओके, सो ये वाली स्टेप हो गई थी या इससे पहले आपका नेटवर्क ब्रेक हो गया था मेरा? सर इससे पहले ही हो गया था ब्रेक। ओके, ये वाली? हाँ सर, ये वाला हो गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इट मीन्स आपके पास में कोई फंक्शन टी की पावर एन से मल्टीप्लाई में है और आपको उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, देन वी अप्लाई दिस डेरिवेटिव ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी इक्वल्स टू आयोटा की पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ओमेगा, राइट? तो ये आपको रिजल्ट यूज करना है। और सिमिलरली यदि आपके पास में nth डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा दे रखा है और आपको उसका इनवर्स निकालना है, so you can find the inverse Fourier transformation by using this relation f inverse of f n omega equals to minus iota की पावर n t की पावर n f t. And next one is the Fourier transform of the integral, that f t be piecewise continuous over the interval minus l to l, and this integral converges. Then the Fourier transformation of this integration minus infinity to t f of tau d tau equals to 1 upon iota omega capital F omega, provided that Fourier transform at 0 is 0. ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आपको यूज करना है यदि आपके पास में इंटीग्रल गिवन है। सो लेट अस सी द एग्जांपल वन मोर प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि इफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस स्मॉल फंक्शन f t equals to capital F omega, then the Fourier transformation of the Fourier transformation is given by actual function with frequency minus omega. इट मीन्स इसका मतलब है कि आपके पास में किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, एफ टी के इक्वल गिवन है कैपिटल एफ ओमेगा, और आपसे फाइंड आउट, आपको कहा जाएगा फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्चुअल जो स्मॉल फंक्शन एफ टी है उसमें टी की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे? माइनस एफ ओमेगा पुट कर देंगे, ठीक है? See this one. The result, we know that f t equals to inverse Fourier transformation of capital F omega, which is 1 upon root of 2 pi integration minus infinity plus infinity capital F omega e की पावर iota omega t d omega. ये हमारी डेफिनेशन है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। यस और नो? हेलो हेलो, यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे ओमेगा क्या डमी वेरिएबल है, यदि ओमेगा की जगह हम एस पुट कर दें यहाँ पे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू कैन राइट 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल एफ विच इज द फंक्शन ऑफ एस ई की पावर आयोटा एस टी टी एस। और यदि हम इसमें टी की जगह माइनस ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें इस इंटीग्रल के अंदर, देन वी गेट टी की जगह आपने क्या पुट किया? माइनस ओमेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड भी बन जाएगा एफ ऑफ माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एस माइनस ई की पावर आयोटा ओमेगा डी एस, एंड दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ, राइट? ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ माइनस ओमेगा, राइट? तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट जब आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है जो किसी ऑलरेडी किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो वी कैन अप्लाई दिस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? Let us see the example based on this one. Find the Fourier transformation of t e की पावर माइनस टी स्क्वायर। और यदि आपको लास्ट लेक्चर में पता हो तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट व्हाट इज द Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस टी स्क्वायर।
लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी प्रूव किया ई की जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, सी दिस वन, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रूव किया होगा, इफ यू रिमेंबर this one Fourier transformation of e की पावर minus at square is given by this one 1 upon root of 2a e की पावर minus omega square upon 4a। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी प्रूव किया है। सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी हियर। सो if ft equals to e की पावर minus t square, then its Fourier transformation is given by 1 upon root 2 e की पावर minus omega square upon 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रिजल्ट में a की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। सो Fourier transformation of e की पावर minus t square is equals to 1 upon root 2 e की पावर minus omega square upon 4। Therefore, by the property of the Fourier transformation, TFT की ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपके पास में, दिस वन, Fourier transformation of first derivative, sorry, not first derivative, it is TFT, this one, it means iota times first derivative of f omega। तो ये वाली यदि आप प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं, देन Fourier transformation of t e की पावर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा f प्राइम ओमेगा। इट मीन्स आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन 2 रूट 2 e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कोई डाउट इसमें? यहाँ पे आपको एफ टी का लेप्लस पता है, तो आपको टी एफ टी का लेप्लस, सॉरी, फूरियर निकालना है आपको। हेलो, यस सर। ठीक है, आप रेस्पॉन्ड करते रहिए, क्योंकि नेटवर्क का इशू आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा इसमें। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें e की पावर माइनस टी स्क्वायर का फूरियर निकालना है पहले, और विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। और आपको इसके बाद में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ TFT, which is equals to iota f प्राइम ओमेगा। ठीक है, जहां पे f ओमेगा क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल f। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर है, एंड टी की पावर माइनस टी स्क्वायर द डेरिवेटिव ऑफ minus 1 upon 2 times e की पावर minus t square. So you can write minus 1 upon 2 f prime t. t की पावर minus t square को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, minus 1 upon 2 times t derivative of e की पावर minus t square, और you can also write minus 1 upon 2 times first derivative of ft, it means e की पावर minus t square का। So therefore Fourier transformation of e की पावर t times e की पावर minus t square equals to Fourier transformation of minus 1 upon 2 f prime t, or you can also write minus 1 upon 2 times Fourier transformation of first derivative, और इसका फॉर्मूला आपके पास में क्या अवेलेबल है, Fourier transformation of first derivative, this one, आयोटा ओमेगा कैपिटल F ओमेगा, राइट। यदि हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करते हैं, it means Fourier transformation of first derivative equals iota omega f omega. So this is minus 1 upon 2 iota omega f omega, and f omega means 1 upon root 2 e की पावर minus omega square upon 4, because इसका f t है, it means e की पावर minus t square आपका, and we know that Fourier transformation of e की पावर minus t square is 1 upon root 2 e की पावर minus omega square upon 4. So this is our final answer। ठीक है, तो चॉइस आपकी, इसको कैसे सॉल्व करना है, टीएफटी के फॉर्मूले से करना है या डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फाइंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ओमेगा अपॉन 8 आयोटा ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है,
और यदि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है ऑलरेडी यहाँ पे, e की पावर माइनस ए टी स्क्वायर का फूरियर किसके इक्वल है, 1/√2 ऑफ 2a e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a। तो यदि हम इससे कंपेयर करें यहाँ पे, सो फॉरगेट अबाउट द ओमेगा, e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 आ रहा है यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी एक तरह से, ये सुनो। Yes, sir. सो ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल E to the power minus 80 square. 2t स्क्वायर बेसिकली, a की जगह 2 हो जाएगा आपका, है ना, Yes, sir. because we know that Fourier transformation of e की पावर माइनस at square which is equals to 1/√2a e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। So let us prove this one. So we have omega upon 8 iota e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 and it is the derivative of e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 with multiply by minus 1/2 iota, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है, इस टर्म का डेरिवेटिव है। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू बाय द लीनियरिटी प्रॉपर्टी -1/2 आयोटा एफ इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। So you can write -1/2 iota f inverse of f prime omega, where f omega equals to minus e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, and we know that Fourier transformation of TFT equals to iota f prime omega, ये वाली प्रॉपर्टी हमको पता है, ये सुनो, ये सुनो। Yes, sir. और यदि आपको इसका इनवर्स निकालना है प्राइम ओमेगा का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, माइनस आयोटा टीएफटी होगा कि नहीं होगा। यहां से इसका यदि आप इनवर्स निकालते हैं कैपिटल एफ प्राइम का, तो ये बन जाएगा 1 आयोटा टाइम्स टीएफटी। 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा टीएफटी, ये सुनो। यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ प्राइम ओमेगा, तो यहां से यदि हम ये वाले प्रॉपर्टी इसका इनवर्स निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, -1 आयोटा टीएफटी के बराबर हो जाएगा, है ना। सो माइनस आयोटा बेसिकली, 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा। सो यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं देन वी गेट -1/2 आयोटा माइनस आयोटा टीएफटी, राइट, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ओमेगा इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ, और जहां पे एफ टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ एफ ओमेगा मतलब ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू, बिकॉज एफ ऑफ ओमेगा आपके पास में कितना गिवन है, ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 विच इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised power minus 2t square equals to 1/2 e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8। यदि यहाँ पे इसे हम कंपेयर करें, ए की जगह आप 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/√4, इट मीन्स 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a, इट मीन्स 8। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस 2t स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8। तो इसका इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, यहां से एफ इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई की पावर माइनस 2t स्क्वायर, यस और नो, बिकॉज ई की पावर माइनस 2t स्क्वायर का फूरियर क्या बनेगा, 1/2 ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, और हमको इसका इनवर्स निकालना है। सो दिस इज 2 टाइम्स ई की पावर माइनस 2t स्क्वायर। एफ टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो देन वी गेट
टी की पावर माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज की है। फर्स्ट हमने क्या किया, जो भी हमारे पास में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया पहले आपने। ठीक है, सो एफ इनवर्स ऑफ दिस इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स एफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ओमेगा, और हमने यहाँ पे ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी वाला। तो इसका इनवर्स माइनस आयोटा टी एफ टी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में एफ इनवर्स ऑफ दिस इक्वल्स टू टी की पावर माइनस 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी आपके पास में कोई फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो चेक कर लीजिए वो किसी के डेरिवेटिव के इक्वल तो नहीं है। यदि किसी के डेरिवेटिव के इक्वल है और यदि आपको उसका इनवर्स निकालना है तो आपके पास में प्रॉपर्टी क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी इक्वल्स टू आयोटा एफ प्राइम ओमेगा। राइट, सो यहाँ पे दो केस है। यहाँ पे यदि आपका जो भी गिवन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है, पहले तो ये चेक कर लीजिए आप, और यदि डेरिवेटिव है तो आपको उसको पता होना चाहिए किसका डेरिवेटिव है, और उससे हमारे पास में जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेक किया, देखो इस एग्जांपल में कि हमारे पास जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये बेसिकली -1/2 आयोटा टाइम्स ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 का डेरिवेटिव है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में ये फॉर्म बनेगी -1/2 आयोटा एफ इनवर्स ऑफ एफ प्राइम ओमेगा, और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का इनवर्स निकालना है। तो इट मींस हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ टी इक्वल्स टू आयोटा एफ प्राइम ओमेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस आयोटा टी एफ टी, और यहाँ से हम एफ टी हमको पता ही है विच इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ ओमेगा, और कैपिटल एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, और हमको पता है ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 टाइम्स ई की पावर माइनस 2t स्क्वायर का है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट बन जाएगा टी की पावर माइनस 2t स्क्वायर। क्लियर? हेलो, Yes, sir. ऑलराइट है। फाइंड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर 4 आयोटा ओमेगा 3 प्लस आयोटा ओमेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको इसका इनवर्स निकालना है और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है तो आपके पास में स्केलिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, दिस वन, ये रही। राइट, बिकॉज यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ई की पावर माइनस ओमेगा टी नोड इन्वॉल्व है। सो यदि ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, यहाँ पे क्या है, ये है। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी नॉट कैपिटल एफ ओमेगा। ठीक है, and we know that Fourier transformation of e की power minus 3t ut equals to 1 upon root 2 pi 1 upon 3 plus iota omega। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, सी दिस वन। ये एग्जांपल था लास्ट लेक्चर में, Fourier transformation of e की पावर minus 80 where t greater than 0 and a greater than 0। इसका Fourier ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला था, दैट इज 1 upon root 2 pi टाइम्स 1 अपॉन ए प्लस आयोटा ओमेगा। ठीक है, और जो हमारे पास में ये फंक्शन गिवन था इसको हमने इस फॉर्म में स्टेप फंक्शन की फॉर्म में भी लिखा था यहाँ पे। इट मींस यू नॉट ई की पावर माइनस ए टी का फूरियर बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई 1 अपॉन ए प्लस आयोटा ओमेगा। राइट, तो यहाँ पे भी यही सेम केस है, 1 अपॉन रूट 2 पाई 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा ओमेगा।
यहाँ पे a की जगह क्या पुट करेंगे हम, सिंपली 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा आपके पास में 1/√2 पाई 1/3 प्लस आयोटा ओमेगा, और f इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस आयोटा ओमेगा इक्वल्स टू √2 पाई e की पावर माइनस 3t u नॉट t इक्वल्स टू ft। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे। नाउ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यूज की यहाँ पे। टाइम शिफ्टिंग का मतलब इसका इनवर्स आपको निकालना है। सो f इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी नोट कैपिटल F ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल f t माइनस टी नोट हो जाएगा। और यहाँ पे e की पावर कितना दे रखा है, 4 आयोटा ओमेगा दे रखा है। तो आप इसको इसके पैरेलल यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा -4, यस और नो। यदि हम इससे कंपेयर करें, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू कितनी है, -4 हो जाएगी, Yes, sir. राइट। सो इसको इस फॉर्म में आपने रिप्लेस कर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर -4 आयोटा ओमेगा 3 प्लस आयोटा ओमेगा। नाउ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू f ऑफ t -4। तो आपने जो एफ टी निकाला है यहाँ पे t की जगह क्या पुट करना है आपको, t -4 पुट करना है, और यू कैन से t+4 मान लीजिए सीधा सा आप, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए √2 पाई e की पावर -3 t+4 u -4t, बिकॉज इफ यू रिमेंबर ut इक्वल्स टू u ऑफ t, और u ऑफ at यदि आपको पता है दैट इज u ऑफ t माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, t ऑफ -4 है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, u -4t को आप क्या लिख सकते हैं, u ऑफ t+4, यस नो, Yes, sir. बिकॉज वी नो दैट u ऑफ at इक्वल्स टू u ऑफ t माइनस a, तो u -4t की तो जगह u ऑफ t+4 हो जाएगा। तो यहाँ पे t की जगह t+4 पुट कर दीजिए आप, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। और यदि हम स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन यूज करते हैं तो हमारे पास it is 0 for t -4 and it is √2 pi e की पावर -3t+4 for t greater than equals to -4। ओके, तो हमने यहाँ पे टाइम स्केलिंग जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो यूज की है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी आपके पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है ऑफ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और आपको इनवर्स निकालना है, तो आपको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसको बताइए कैसे यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। 1/5 प्लस आयोटा टी, यदि आपको पता है तो लास्ट एग्जांपल में क्या था, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर -at u नॉट t, दिस इज इक्वल टू 1/√2 पाई 1/a प्लस आयोटा ओमेगा, यही है, सी दिस वन, यस ना। Yes, sir. और आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में गिवन है 1/5 प्लस आयोटा टी। तो यदि आपको याद है तो हमने एक स्केलिंग वो भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि हमारे पास में यदि किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पास स्मॉल फंक्शन है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ ओमेगा है, और आपसे इस कैपिटल एफ ओमेगा का ही आपसे अगेन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाए, है ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ Small ऑफ f minus omega. माइनस ओमेगा। तो हमारे पास में ये कैपिटल एफ ओमेगा दे रखा है, एक तरह से कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सो दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ √2 पाई u नॉट e की पावर -5t इक्वल टू 1/5 प्लस आयोटा ओमेगा, ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, सो यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/5 प्लस आयोटा t इक्वल टू √2 पाई u
माइनस ओमेगा ई की पावर 5 ओमेगा। टी की जगह क्या पुट करना है, ये आपका एफ टी है, इसमें टी की जगह क्या पुट करना है आपको, माइनस ओमेगा पुट करना है। सो रूट 2 पाई यू नॉट माइनस ओमेगा ई की पावर 5 ओमेगा। और इसको आप यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो यू कैन इजीली फाउंड आउट इट इज 0 फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 0 and it is root 2 pi e की पावर 5 ओमेगा for u less than equals to 0। yes or no? u नॉट t की डेफिनेशन क्या है आपके पास में, it is 0 for t less than 0 and it is 1 for t greater than equals to 0। यहाँ पे t था बट यहाँ पे t की जगह क्या माइनस ओमेगा है, तो साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। सो ओमेगा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उस केस में 0, और ओमेगा की वैल्यू यदि नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा होगा ना, उस केस में बन जाएगा रूट 2 पाई ई की पावर 5 ओमेगा। ठीक है, सो यू कैन राइट इन दिस वे। क्लियर? हेलो? Yes, sir. क्लियर? सो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट वन इज द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y prime minus 2y equals to ht e की पावर minus 2t, where ht is the हेविसाइड फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन। सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। फर्स्ट वी अज्यूम दैट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल्स टू कैपिटल Y ओमेगा and apply the Fourier transformation to the given differential equation, then we get जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस पे आपने Fourier ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। सो एफ ऑफ y प्राइम माइनस 2 एफ वाई प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ एच टी की पावर माइनस 2t, राइट। y प्राइम का Fourier ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा आयोटा ओमेगा y ओमेगा, बिकॉज इफ यू रिमेंबर Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा एफ ओमेगा, ठीक है, माइनस 2y। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको पता ही है, Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 2t यू नॉट टी, इसका हमने ऑलरेडी निकाला है अभी, दिस वन 1/√2 पाई 1/a प्लस आयोटा ओमेगा, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है एक्सपोनेंशियल में t के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 है। सो 1/√2 पाई 1/2 प्लस आयोटा ओमेगा। इसको हम कैपिटल Y के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 1/√2 पाई 1/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि 1/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका Fourier ट्रांसफॉर्मेशन है इन द लास्ट लेक्चर, इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट। Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस a mod ऑफ t, इसका Fourier आपको क्या मिल रहा था, √2/पाई a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका है, दिस इज Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस ऑफ a mod ऑफ t। तो यदि हम इससे कंपेयर करें यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 2 मिल रही है यहाँ से, है ना। a की जगह यदि आप 2 पुट कर दें तो 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। सो दिस इज Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 2 mod ऑफ t, a की जगह आप 2 पुट कर दीजिए आप इसमें, राइट। सो yt इक्वल्स टू 1/√2 पाई f इनवर्स ऑफ माइनस, हाँ माइनस ले लिया आपने, 1/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 1/4 e की पावर माइनस 2 mod ऑफ t, ठीक है। ये वाला रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। कोई डाउट है इसमें? No, sir. देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/√2 पाई
1/2 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपको √2/π की फॉर्म में लिखना है इसको, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/2 1/√2π as such, and this is √π/2 √2/π to 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास में, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से पाई से √π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बार -1/4, यस और नो, और अंदर आ जाएगा √2/π टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यस और नो। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. ये जो हमारी टर्म है, इस टर्म को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, -1/4 टाइम्स √2/π टाइम्स 2/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वी नो दैट दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, e⁻²mod ऑफ t, ठीक है। तो हमने इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स किसके बराबर बन जाएगा, -1/4 टाइम्स e⁻²mod ऑफ t हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं, सो t लेस देन 0 के केस में बन जाएगा -1/4 e⁻²t, और ग्रेटर देन के केस में बन जाएगा -1/4 e⁻²t, ठीक है। सो ये था आज के लेक्चर में, हमने क्या किया, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने डिफाइन किए, और उनके बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे ट्राई किए। कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग।